معروف سیاسی و سماجی شخصیت کچھی میمن برادری کے رہنما اور کچھی میمن جماعت بھیمپورہ کے صدر سیٹھ محمد فاروق مٹھانی کی یاد میں کچھی میمن جماعت بھیمپورہ کی جانب سے قرآن خوانی اور تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوا۔ محمد فضیل قادری نے تلاوت کلام پاک اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی اشجار کے پتوں نے پڑھا۔ معروف ثناءخواں اسد غلام نبی اور محمد زبیر اسحاق نقشبندی نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پیر طریقت حضرت علامہ محمد زاہد کریم قادری نے تعزیتی اجتماع سے خصوصی خطاب فرمایا۔ ایک انسان نے دنیا میں آنا ہے اور پھر ایک دن اس دنیا سے واپس چلے جانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک
یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، مگر جب ہم سے کوئی بچھڑ جائے، اس بچھڑنے والے کے لیے کچھ اعزاز اور پروٹوکول اللہ جی نے رکھا ہے، اور اس کو اپنے انبیاء کی سنت بنایا۔ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 41۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور سب مومنین و مومنات کے لیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب تو میری بخشش فرما، مجھے مغفرت عطا فرما۔ ولوالدی، اور میرے ماں باپ۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تمام مومنین و مومنات یوم حساب والے دن۔ اے باری تعالیٰ تو مجھ پر، میرے ماں باپ پر، اور قیامت میں دنیا میں آنے والے ہر صاحب ایمان کے اوپر اپنی رحمت اور مغفرت کے دریا بہا دینا، اور سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرنا، اور نعمتوں والی جنت سے مالا مال فرما۔ حاضرین محترم، اللہ انسان کو جب زندگی عطا کرتا ہے تو بلوغت تک اتنا انسان سمجھدار ہو جاتا ہے، اتنی نالج انسان کو مل جاتی ہے کہ اللہ کون ہے، رسول پاک کون ہے، آخرت کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، اچھائی اور برائی کیا ہے۔ جو ہی بندہ بلوغت کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو نماز بھی فرض ہو جاتی ہے، روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ پھر جو زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ترقیاں دیتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جو اس کی استطاعت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ظاہری اعمال ساکت ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی اپنی جو عبادت کو کرتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، وہ عمل تو ساکت ہو جاتا ہے، مگر اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی، اگر اس نے کوئی انسانیت کی خدمت کے کوئی کام کیے، مخلوق کی خدمت کے وہ کام کرتا رہا، اللہ کی مخلوق کے لیے آسودگی پیدا کرتا رہا، وہ عالم تھا یا اسے کوئی بھی علم آتا تھا، اس نے کسی کو ہنر سکھایا رزق حلال کمانے کے لیے، کسی کو گاڑی چلانا سکھائی، کسی کو کوئی مزدوری کا ہنر سکھایا، اس ہنر سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، یا وہ ہنر اس نے کسی کو آگے سکھایا اور اس کے ہنر سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو مرنے کے بعد اس سب کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ کچھی میمن جماعت بھیمپورہ کے جنرل سیکرٹری محمد شکیل بانوٹیا نے پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر کچھی میمن مرکزی جماعت پاکستان کے چیئرمین غلام فاروق آرتانی، مرکزی جنرل سیکرٹری محمد نعمان عبدالرؤف کوئٹہ والا، کچھی میمن جماعت گاڑی کھاتا کے صدر محمد اکرم یوسف، کچھی میمن جماعت بھیمپورہ کے جنرل سیکرٹری محمد شکیل بانوٹیا، فرینڈز آف میمن ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں اختر حسین شہزاد، کچھی میمن جماعت سوسائٹی کے صدر محمد امین عیسانی، کچھی میمن جماعت صدر کے پریزیڈنٹ محمد ظہیر منگل والا، کچھی میمن جماعت کلری کے جنرل سیکرٹری محمد جمیل ویانی، کچھی میمن جماعت کے رہنما عبدالرزاق عمر اور کچھی میمن اکیڈمی بھیمپورہ کے عہدیدار محمد شاذیب آلیانی نے مرحوم محمد فاروق مٹھانی کی خدمات پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र। जैसे मौलाना साहब ने कहा कि वही लोग कामयाब हैं जो अच्छे काम करें। फारूक मिठाई साहब के हवाले से तर्जुमा यही है कि ज़माने कसम ज़माने की कि इंसान बड़ा खसारे में है सिवाय उनके इल्लज़ीना आमनू जो ईमान लाए वअमिलू स्वालिहात एक अच्छे काम किए और वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र और हक़ और सब्र की बात करते हैं। ये सारी बातें फारूक मिठाई साहब ने की। वेलफेयर का काम करते थे, लोगों की दुआएं लेते थे और ठंडी मिजाज आदमी लोगों के पास आते थे, जिसम से बात करते थे, तसल्ली देते थे, काम हो ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की जो ये कुरान शरीफ की जो आयात है इसको हमें ज़हन में रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि कामयाबी ज़र दौलत में नहीं है, कामयाबी मालो दौलत में नहीं है, औलाद में नहीं है, कामयाबी सिर्फ फलाह व बहबूद में है। अच्छा, पहले तो आप तमाम साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में वक्त निकाल के शामिल हुए। और जहाँ तक कुछ कहने की बात शकील भाई ने की है, और उससे पहले मैं अख्तर भाई की बात का जवाब देना चाहूँगा कि हमारे पास जो कुछ बुज़ुर्ग रह गए इनको रिटायर कर दिया जाए, तो सोशल वर्क से अगर उनका वर्क छीन लिया जाए ना तो उनकी मौत वैसे ही हो जाएगी। तो ये ज़रा मुश्किल है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, जो ये फारूक भाई के जाने से लॉस हुआ है वो कम्युनिटी के लिए लॉस अपनी जगह पे, फैमिली के लिए लॉस अपनी जगह पे, जो अली मिठानी का मुश्किल है। लेकिन जब मैं पिछले साल ही सेक्रेटरी जनरल बना तो मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा लॉस हो गया कि देखिए नेक औलाद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होता है। और फारूक मिठानी साहब के जो भी मामला थे, जो भी ज़िंदगी में उन्होंने काम किए, वो अल्लाह की रज़ा के लिए किए। और फारूक मिठानी साहब की खिदमत के बाद अली मिठानी ने जो उनकी खिदमत की, और उनके दोस्त यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, हम उन्हें अपन भाई के नाम से जानते हैं। देखिए, हम जाते हैं ना किसी को मरीज़ को अस्पताल में देखने के लिए, 5 मिनट देखा, ठीक है खैरियत है, चलो फिर सही, अल्लाह ने तो ठीक है तुम ठीक हो जाओगे इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं, और हम निकल जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा कि अली और ये दोस्त और उनके एक और भी साथी थे कि जब उनको ब्लड ट्रांसफ्यूशन हो रहा था तो ये 5-5, 6-6 घंटे जो है ना वहाँ बैठे होते थे। और SIU के अंदर जो अली ने खिदमत की, मैं क्योंकि इसका खुद चश्म गवाह हूँ, तो अल्लाह ताला ऐसे नेक औलाद हम सबको लेता करे। रमज़ान की मुबारक सातें चल रही हैं और हमारे दरमियान फारूक भाई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं रज़ा कुमार साहब से पिछले रमज़ान की बात कर रहा था और फिर उससे पिछले रमज़ान की बात कर रहा था कि पिछले रमज़ान में किस तरह हमारे दरमियान फारूक भाई मौजूद थे और उन्होंने किस तरह हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। आज का ये प्रोग्राम, ताज़ियती प्रोग्राम रखने का इन सातों में मकसद भी ये था कि मुमकिनात में से था कि हम बहुत सारे लोगों की आखिरी अशरे में मसरूफियात होती हैं और वो बादस ईद जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अटेंड कर लेते, लेकिन हम इन सातों को खोना नहीं चाहते थे। रिक्वेस्ट मेरी ये थी फारूक मिठानी साहब से कि जो ये बुज़ुर्ग हैं जो 40-40, 50-50 साल से काम कर रहे हैं, इनके सीने में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ख्यालात थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पे अप्लाई की, इदारों को बनाने में, बेहतर बनाने में काम किया। वो कोई भी हमारे पास किताबी शक्ल में, बदकिस्मती है हमारी कि हमारे इदारों में महफूज नहीं है, ना लिखा कहीं भी नहीं है, सबके सीनों में है। फारूक भाई के सीने में जो बातें थी, जो ख्यालात थे, जो इदारे के लिए बेहतरी के लिए बातें थी, वो उनके सीने में थी और दफन हो गई उनके साथ ही। मुझे नहीं पता कि अली को उन्होंने कितना ट्रेन किया था या कितना बताया था। नामुमकिन है कि जो फारूक भाई ने 50 साल में काम किया हो वो सब अली को पता हो या इदारों को पता हो। तो बेहतर यह है कि एक ऐसी कमेटी हो, एक ऐसे बुज़ुर्गों के, मैं ज़हीर भाई से ये अज़राए मज़ाक कह रहा था कि रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए कि ये जो पुराने लोग हैं जो 40-40, 50-50 साल से काम कर रहे हैं, इनको रिटायर करके रिटायर हो जाएं और रिटायर होने के बाद आप एक कमेटी बना दें, उन बुज़ुर्गों की एक बुज़ुर्ग कमेटी हो जो ये नए लोगों को ट्रेन करे। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि फारूक मिठानी के हवाले से मैं उनके करीब भी नहीं हूँ कि मैं उनकी इतनी तारीफ़ करूँ। वो खुद एक तारीफ़ के पाबंद थे कि टाइम पे सब चीज़ करना या हमें सिखाते रहते थे। बस ज़्यादा बात तो शकील भाई, फारूक भाई ने सरखिदमत कर दी है, तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि फारूक भाई के मैं
पाँव के बराबर भी कोई काम वो तारीफ के काबिल कर रहा है। बस यही दुआ है कि अली मिठानी जो हमारे साथ भी पहले काम किए, क्रिकेट में भी, कब्रिस्तान में भी माशाल्लाह किया है, उनको और हिम्मत दे और इसी तरह आगे तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। तो मेरे लिए फारूक मिठानी दोस्त भी था और भाई भी था। उसके साथ मेरा जो राब्ता था वो हकीकत में बता रहा हूँ कि ऐसा पुराना राब्ता था कि हम दोनों हंसी मजाक मस्ती हर चीज़ एक साथ करते थे और कभी वो बुरा नहीं मानता था, बल्कि मुझे समझाता था कि नहीं यार झगड़ा नहीं कर, इससे वो नहीं कर, इससे दोस्ती कर ले। हर चीज़ में आज वो याद आ रहा है। माजी तो माशाल्लाह सबने कह दिया और हम तो अपनी बीती बताएंगे कि जो फारूक भाई से हमारे रिलेशन थे, हमारे मामला थे। मेरी उम्र तो नहीं थी इतनी, वो मुझसे बड़े थे, मेरे काफ़ी सीनियर थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो उनको मफामत का बादशाह कहता हूँ कि वो बुज़ुर्ग थे कि कहीं भी बैठते थे किसी भी मसालती मसले में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर बन जाता था। एक सुल्तान अबू बकर अलियानी साहब थे, फारूक भाई थे, अब्दुल्ला गुजराई साहब थे। मैं उस दौर से मसालती कमेटी में चलता आ रहा हूँ करनी जमा से, शकील भाई, अहमद साहब, अब्दुल्ला अहमद साहब। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा दिन नहीं था कि हमने किसी घर को आबाद होकर जो है ना उनको घर नहीं भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़ी इज्जत किया करते थे इनकी। मेरा वास्ता अब्दुल रज़ाक मिठानी साहब से पड़ा, मेरे उस्ताद मोहतरम, समझे ना। इसके बाद इसके साथ साथ फारूक मिठानी साहब वो भी मेरे साथ, बल्कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मुझे याद है कि 1987 में मैं स्टूडेंट फेडरेशन का चेयरमैन था और गाजगंज यूनिट का एक प्रोग्राम था जीना बजीना। उसके सवालनामे को मुरतब करने में फारूक भाई का बहुत बड़ा हाथ था। ये 37 साल का अरसा और अब तक का जो टाइम है ना वो हमने भाइयों की तरह उनके साथ गुजारा। अल्लाह पाक फारूक मामू की मग़फ़िरत फरमाए और साथ साथ हम मेरे भाई जैसे दोस्त अली मिठानी के साथ भी ताज़ियत करते हैं। यकीनन वालिद का जो जाना है ये बड़ा अफसरदा मामला होता है। अल्लाह पाक इसको सब्र दे और साथ साथ फारूक मामू का जो हमारे साथ कोऑपरेट रहा है हमेशा, जब हम फेडरेशन में भी थे तो उनसे काफ़ी हम सीख लेते थे, उनकी काफ़ी गाइडेंस पे थे। इसके बाद जब हम जमात में आए तो फारूक मामू ही हमारे प्रेसिडेंट थे। जिस तरह गुलाम फारूक साहब ने कहा कि आज उनको मरूम बोलते हुए जो है वो दिल नहीं मान रहा, तो मेरी भी बिल्कुल कैफियत ऐसी है क्योंकि बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में हम बात करते थे। प्रोग्राम का अख्तिताम सलात व सलाम और दुआ पर हुआ। इस मौके पर शुरका महफिल ने मरहूम मोहम्मद फारूक मिठानी के साहबजादे मोहम्मद अली मिठानी और मरहूम के भाई मोहम्मद अयूब मिठानी से इज़हार ताज़ियत किया। बाद अज़ां लंगर का एहतमाम भी किया गया। इस यादगार तकरीब में कच्छी मेमन जमात के कायदीन के अलावा चेयरमैन नोबल ग्रामर स्कूल अब्दुल अजीज़ नोबल, अब्दुल रशीद कलईवाला और कच्छी मेमन जमात भीमपुरा के नायब सदर अब्दुल करीम गोदराई समेत कच्छी मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की।